Good morning, students. Welcome to your social studies class. Today we are going to read chapter number 12, Healthy Living, Role of Instruments and Machine. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन का क्या रोल है इन हेल्दी लिविंग. Today the living of people is different from the old days. Nowadays जो people की living है that is totally different from old days. Their lifestyle and food habits are different from the earlier condition. इनकी lifestyle और जो food habits है वो भी different है earlier condition से. Now they have become more conscious about their health. और अब वो बहुत ही ज़्यादा conscious हो चुके हैं अपने health के लिए. They take nutritious food, exercise daily and take precautions against disease. Nutritious food consume करते हैं people. रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं और प्रिकॉशंस भी लेते हैं अगेंस्ट वेरियस डिजीज़. मॉडर्न एजुकेशन, एडवांसमेंट इन मेडिसिन्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैव मेड द लाइफ ऑफ द पीपल मोर प्रोटेक्टेड एंड हेल्दी. मॉडर्न एजुकेशन, एडवांसमेंट मेडिसिन्स में और जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है इससे पीपल की लाइफ बहुत ही प्रोटेक्टेड और हेल्दी हो चुकी है. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन मेडिकल फील्ड्स which have improved the health conditions of human being. Now today we are going to understand जो latest developments हैं medical field में जिससे कि health condition of human being improved हुई है. Instruments and machine, clinical and digital thermometer. जो clinical and digital thermometer आपने देखा ही होगा. This is clinical thermometer and this one is digital जहाँ पे digit form में आपका temperature आता है. The temperature of a body is not fixed all the times. हमें पता है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है that is not at all fixed. It changes according to our environment. और ये environment के अकॉर्डिंग चेंज होता है. The normal temperature of human body is about 37 degree Celsius और 98.6 degree Fahrenheit. जो ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का that is 37 degree Celsius और 98.6 degree Fahrenheit. When body temperature increases above the normal temperature, the body is said to have fever. जब भी body temperature increase हो जाता है from the normal temperature, this is a normal temperature, इससे जब भी हमारा body temperature increase होगा, the body is said to have fever. So students, जब भी आप ये बोलते हो कि हमें fever है, that means आपका जो body temperature है that is more than 98.6 degree Fahrenheit. In the ancient times, we used to guess the temperature either by touching the body or by feeling the pulse. Ancient times में हम guess करते थे temperature किस तरह से body का by touching the body, body को touch करके और by feeling the pulse, pulse को feel करके. Now we have clinical and digital thermometer. अब हमारे पास clinical और digital thermometer है. On clinical thermometer, there is a scale printed on a scale between 95 degree Fahrenheit to 110 degree Fahrenheit. जो clinical thermometer होता है, this is an clinical thermometer, इसमें एक scale बना हुआ है. As you can see in this picture, ये देखो scale बना हुआ है that starts from 95 degree Fahrenheit से लेके start होके 110 degree Fahrenheit तक होता है. The mercury in the clinical thermometer expands when it gets heated. जो mercury है clinical thermometer में ये expand हो जाती है whenever it gets heated and gives the temperature of the body. और ये हमें तभी body का temperature बता सकती है. Whereas digital thermometer work due to sensors. जो digital thermometer है वो work करती है due to sensors and there is a digital readout to display the temperature. और इसमें एक स्क्रीन होती है या डिस्प्ले स्पेस होता है जहाँ से हम टेम्परेचर को रीड आउट कर सकते हैं. द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ टेम्परेचर हेल्प्स द डॉक्टर टू ट्रीट द पेशेंट प्रॉपरली. जो एग्जैक्ट आइडिया होता है टेम्परेचर का वो हेल्प करता है डॉक्टर को कि वो पेशेंट की ट्रीटमेंट करे प्रॉपरली. स्टेथोस्कोप, दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू फाइंड आउट द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स एंड हार्ट. जो ये स्टेथोस्कोप है ये फाइंड आउट करती है कि हमारी लंग्स और हार्ट प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रही है या नहीं. इट वॉज डेवलप्ड बाय डॉक्टर रेने लेनिक. ये डॉक्टर रेने लेनिक ने डेवलप किया था.
Once he noticed that two children were sitting at the ends of a long hollow log of wood. एक बार उन्होंने नोटिस किया कि टू चिल्ड्रंस बैठे हुए थे एट बोथ एंड ऑफ अ लॉन्ग हॉलो लॉग ऑफ वुड. एक लॉग ऑफ वुड रखा हुआ था जो बीच में से हॉलो था और उसके दोनों एंड पे टू चिल्ड्रन बैठे थे. वन वॉज विस्परिंग थ्रू इट एंड अदर वॉज लिसनिंग. वन साइड से एक चाइल्ड विस्पर कर रहा था और जो अदर चाइल्ड था वो क्या कर रहा था, दूसरी साइड से ही वॉज लिसनिंग. रेने कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर गेम. रेने को उनकी गेम पहले समझ में नहीं आई. ही इंक्वायर्ड फ्रॉम देम एंड आफ्टर डैट उसने उनसे इंक्वायर किया, पूछा कि वो क्या प्ले कर रहे हैं. द चिल्ड्रन टोल्ड हिम दैट इवन द विस्परिंग कैन बी ईजिली हर्ड थ्रू दिस हॉलो लॉग. तो उन दोनों चिल्ड्रन ने क्या बोला उनको कि जब हम विस्पर कर रहे हैं वो हम ईजिली अदर साइड से हम ईजिली सुन सकते हैं. ही थॉट अबाउट इट. और उन्होंने इसके बारे में सोचा. ही रोल्ड अ पेपर टू मेक अ हॉलो ट्यूब. उन्होंने एक पेपर को रोल किया और उससे एक हॉलो ट्यूब बनाया एंड प्लेस्ड इट ऑन द चेस्ट ऑफ अ पेशेंट. और उसे पेशेंट के चेस्ट पे प्लेस किया. ही वॉज एबल टू हियर द हार्ट बीट्स एंड द साउंड. और वो बहुत ही ईजीली हार्ट बीट एंड द साउंड क्रिएटेड बाय एयर इन द लंग्स. और उससे जो साउंड एयर से क्रिएट कर रही थी इन द लंग्स वो भी प्रॉपरली उनको सुनाई दे रहा था. दिस ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस फाइनली लीड टू द इन्वेंशन ऑफ द स्टेथोस्कोप. और ये ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस से क्या हुआ कि स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन हुआ. नाउ इट इज़ यूज्ड बाय एवरी डॉक्टर थ्रू आउट द वर्ल्ड. एंड अब जो स्टेथोस्कोप है इसका यूज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड सभी डॉक्टर्स करते हैं. माइक्रोस्कोप. द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप हैज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. जो इन्वेंशन हुआ था माइक्रोस्कोप का इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अबाउट 400 years ago the owner of a spectacle shop happened to keep two lenses one behind the other. 400 years ago एक स्पेक्टिकल शॉप के ओनर ने क्या किया था, वन लेंस के ऊपर अदर लेंस रख दिया था. इट वॉज एन इंसिडेंट. ये एक इंसिडेंट था, उन्होंने नोइंगली नहीं किया था. ही लुक थ्रू दिस लेंसेज. उन्होंने उसके बाद उन लेंसेज के थ्रू देखा. ही सॉ अ फ्लाई इन अ जाइंट साइज. उन्होंने एक फ्लाई को देखा जो बिकॉज ऑफ दोज लेंसेज जाइंट साइज लग रहा था, काफ़ी बड़ा लग रहा था. दिस आइडिया हेल्प्ड हिम टू प्रिपेयर अ टॉय. इस आइडिया से उन्होंने एक टॉय प्रिपेयर किया जिसे फ्ली ग्लास बोला जाता था. इट बिकेम पॉपुलर इन यूरोप. और ये जो फ्ली ग्लास नाम का टॉय था ये बहुत ही पॉपुलर हुआ यूरोप में. गैलीलियो एंड इटालियन साइंटिस्ट ऑल्सो लर्नड अबाउट इट. इस टॉय के बारे में गैलीलियो जो एक इटालियन साइंटिस्ट है उन्हें पता लगा. ही ऑल्सो मेड दिस इंस्ट्रूमेंट बट नेम्ड इट माइक्रोस्कोप. इन्होंने भी ये इंस्ट्रूमेंट बनाया बट ये साइंटिस्ट थे तो उन्होंने इसका नाम क्या किया, माइक्रोस्कोप रखा. और इसका पर्पस इन्होंने टॉय पर्पस से हटा के डिफरेंट पर्पस में यूज़ किया. थिंग्स लुक्ड वेरी बिग थ्रू द माइक्रोस्कोप. सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप. यहाँ पे अगर हम कुछ प्लेस करते हैं और यहाँ से अगर हम देखते हैं लाइक दिस लेडीज़ देखो यहाँ से देख रही हैं, यहाँ पे उन्होंने कुछ रखा हुआ है. सो वो काफ़ी जाइंट साइज दिखता है. थिंग्स लुक वेरी बिग थ्रू द माइक्रोस्कोप. विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप बहुत ही स्मॉल या टाइनी चीज़ें भी काफ़ी बिग दिखती हैं. नाउ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप हैव बीन डेवलप्ड. विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, अब जो लेटेस्ट माइक्रोस्कोप्स आ रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल आ रहे हैं. One scientist discovered the drop of water had hundreds of disease causing germs. एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि वन ड्रॉप ऑफ वाटर में 100 टाइप ऑफ डिजीज़ होती हैं बिकॉज ऑफ जर्म्स. व्हेन ही व्यूड इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. जब उन्होंने उस ड्रॉप ऑफ वाटर को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा. द माइक्रोस्कोप हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स. जो माइक्रोस्कोप है उसने हेल्प किया इन आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स, उसमें से हमने आइडेंटिफाई उन्होंने किए. मैनी टेक्निक्स एंड मेडिसिन्स वेयर डेवलप्ड टू ट्रीट द डिजीज़ कॉज्ड बाय द हार्मफुल जर्म्स. और उन हार्मफुल जर्म्स को से जो भी तरह की डिजीज़ हो सकती थी उनके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे मेडिसिन्स यूज़ किए गए बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स. Nowadays, microscopes are widely used by the doctor for examining urine, stool, blood, sputum, etc. और अब क्या होता है, माइक्रोस्कोप को वाइडली यूज़ किया जाता है बाय डॉक्टर्स जिससे वो एग्जामिन करते हैं यूरिन, स्टूल, ब्लड, स्पटम एक्सेट्रा. एंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जो रिज़ल्ट आता है एग्जामिनेशन का उससे जो भी पेशेंट हैं उनको प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है.
Many types of instruments have been invented and developed in different countries of the world. बहुत सारे instruments invent और develop किए गए different countries of the world में. Some of them are X-ray machines, ultrasound machine and CT scanners. उनमें से कुछ हैं X-ray machine, ultrasound machine and CT scanners. Laser beams are now used in surgery. और जो laser beams हैं वो अब surgery में use होते हैं. X-ray machines were discovered by Wilhelm Conrad Röntgen in 1896. In the year 1896, X-ray machine को discover किया था Wilhelm Conrad Röntgen ने. We use X-ray to locate fractures in the body. X-ray को use किया जाता है for locating fractures in the body. Echocardiography जिसे ECG and echoelectrography जिसे EEG बोला जाता है are used to monitor the function of heart and brain respectively. और ECG और EEG को यूज़ किया जाता है in monitoring the function of heart and brain. Students, see, this is the picture of an X-ray machine. X-ray machine किस लिए यूज़ होती है? To locate fractures in the body. Students, today we have read about clinical and digital thermometer, stethoscope, microscope, as well as X-ray machine and ultrasound machine. So read this chapter properly because this is a very interesting chapter. Okay, students. Thank you and goodbye.